नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर इस वक्त पहुंचा हूं काशीपुर के लिटिल स्कॉलर्स स्कूल में। आज यहां पर सेतु 2025 के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आप लोग मेरे पीछे फ्रेम में देख पा रहे होंगे बच्चों की सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों की एक एग्जीबिशन यहां पर लगी है। ये सेतु 2025 एक शानदार एग्जीबिशन है जिसमें यह सिखाया जाता है, बताया जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, पर्यावरण को बेहतर से बेहतरीन रूप कैसे दें और पर्यावरण को बेहतर से बेहतरीन रूप देने में हम और आप किस प्रकार से जाने अनजाने में बेहतरीन भूमिका अदा कर सकते हैं। अब इतना शानदार इनिशिएटिव है, लिटिल स्कॉलर्स स्कूल का इनिशिएटिव है, तो यहाँ बड़े बेहतरीन जो मेहमान हैं वो भी आए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ ये जो सेतु 2025 का ये शानदार प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है इसकी तस्वीरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ सेतु 2025 में। लोगों से बातचीत भी करेंगे, मिलवाएंगे भी और प्रोग्राम दिखाएंगे भी। तो आइए चलते हैं सेतु 2025 में। Welcome to Voltapolis. This is a city where each part generates electricity. So there we can see shoes which can generate electricity and we can eventually charge our phones through it. The mechanism consists of piezoelectric disc which generates electricity by converting mechanical pressure into it. Now, we have a unique feature with it, an app. Like you must have heard the name of a Snapchat, which we get streaks when we post daily. We literally send the snaps in the apps named Snapchat and we literally get no returns. But here, our app, NSTEP app, actually encourages the people to work to complete their daily targets. So this is our project, Spinergy. This project converts mechanical energy into electrical energy through the movement of the bicycle, and Rudransh will explain now how it works. किसी समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए कि सारी समस्या समाधान हो जाए. And our solution is hydroponics. Hydroponics is a technology in which we grow plants without soil. And how do they get nutrients? उनको nutrients मिलते हैं यहाँ से. In this technology, we use water to provide the plant nutrient. And for nutrients, we have fishes. सेतु जैसे कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है ब्रिज, तो ये एक ब्रिज है हमारे को अपने जो सोच है उसको किस तरीके से आप चरितार्थ करें और किस तरीके से आप उस सोच को बदलाव में बदल सके. तो सेतु इज वन ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ अ इवेंट व्हिच वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 11 years. It's the 11th edition of us, and every year we work together where a lot of schools from not only from Kashipur, even from Rudrapur, Haldwani, Khatima and all that type of places. Even I want to say one other thing. एक स्कूल आपको दिखाई देगा, चिराग फाउंडेशन, and that school is there at Ghora Khal. It is an NGO, so they also have come to join us. So this is an event where we train our children, how they can work for environment, how can they help the community. बिकॉज आप कितना भी कुछ कर ले, अगर आप अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के वातावरण को, उसके लिए कुछ नहीं कर पाते तो सब जो कागजी किताबें हैं वो सब बेकार है. तो वी वर्क फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क where we train our children to make them aware about the social campaigns and environmental campaigns. First of all, I'm very glad that I made it here all the way from Delhi. So it's good to interact with some of the students with the models. So it's very nice to see that young people are interested in doing something for the environment, for the sustainability of the planet, and they have come up with different models and they have applied their minds, their thoughts, their expertise, and they have also taken help from all other teachers and things like that. And I'm very glad that I'm able to see some of the projects that students have made, and I look forward to seeing more of those projects as I take this round of the models exhibit. Yeah.
जैसे कि एलएस हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है, बट ये आई थिंक फ्रॉम सिंस 2015 से इन्होंने ये सेतु प्रोग्राम ऑर्गेनाइज शुरू करा है, प्लेटफॉर्म में लाए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आए हैं सेतु के इस प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, और वो बता रहे हैं किस तरीके से हमें अपना इकोसिस्टम किस तरीके से बैलेंस करना है, कैसे हम उसको बैलेंस करके चल सकते हैं आगे हमारे फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर लाइफ। तो बहुत ही बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ताकि इस तरीके जिसमें हमें वाटर, एनर्जी एंड सोलर सिस्टम को इन्वॉल्व करके कैसे हम एक बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। लाइक दीज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं जो एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ के जाएंगे इस दुनिया में,